Hello everybody, we are going to start with our revision of this entire chapter SEBI ICDR regulations 2009. Okay, so I hope you guys are prepared with all the provisions of this chapter. We have already been revising in all our classes, okay, and now is a complete and in full revision of this regulations. This chapter is very important from the point of view of examinations, okay, and we have already focused on all the major areas, your fast track issue, then promoters contribution, reservation and the entire procedure of the issue. Apart from it, there are certain miscellaneous provisions, okay, and lastly we discussed about the role of company secretary. So now we are going to have a complete full discussion of the entire chapter. So here I start. Whatever you feel like writing, you can write, but mostly everything we have written in a comprehensive manner. If I make any kind of graph or tables here, so that you can note down, okay. Chalo, let's start. We are going to start our revision. We are going to complete our revision in this way, that first of all we will talk about the types of issue, and after that we will take every topic while discussing the procedure of listing of securities, the procedure of issue of securities, क्योंकि उसमें सारी चीजें cover हो जाएंगी and we will take up that, okay. So types of issues, how many types of issue are there? First IPO, second FPO, third is your rights issue, fourth bonus issue, fifth private placement, okay, sixth composite issue, and seventh important one is fast track issue, okay. So we have discussed about IPO. What's an IPO? Unlisted company. When an unlisted company lists its shares for the first time to the public, it's an IPO. So the shares are offered to the public, okay, and unlisted company, okay, and there are two regulations, regulation 26(1), regulation 26(2). So this 26(1) is of 5 conditions, ठीक है. क्या conditions है फटाफट से. PL आपका 3 out of 5 years में average pre-tax profit should be greater than equal to 15 crore, okay. Then balance sheet में आपका 3 साल का net worth should be greater than equal to 1 crore. बैलेंस शीट में आपका 3 साल का नेट tangible asset should be greater than equal to 3 crores, जिसमें से not more than 50% should be held in monetary assets. And relaxation सिर्फ किसको है? Only offer for sale वाले को relaxation है. One more thing is offer for sale. ओके, सो इसमें से क्या होना चाहिए? 50% इन not more than 50% should be in monetary assets.
except in the case of offer for sale. Okay, except in the case of offer for sale. Less than 50% should be in monetary assets. Fourth, आपका proposed issue plus all issues कब this financial year, ठीक है, that should be less than equal to 5 times of your net worth of last balance sheet. ओके, ये आपकी 4 कंडीशंस है और 5वीं है इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम 50% of your revenue should be in new name. Okay, so these are the 5 conditions. Regulation 26(2) क्या है? This is for book building process. This is for book building process, जिसमें कि आपको 75% QIB को देना जरूरी है. मिनिमम 75% QIB को देना जरूरी है. So these are your 2 regulations. What is book building process? What is book building process? Where prices are determined by bidding. Where prices are determined by bidding. ठीक है, मार्केट में ओपन बिडिंग होती है एंड देन ओनली व्हाट हैपेंस, the prices of the shares are determined. So the company do not disclose the price of the shares, rather it is determined by the market, by demand and supply, by the bidding process. Then FPO के केस में क्या conditions हैं? Only 2. Which one? 4th and 5th. Which are these? आपकी 4th कंडीशन कौन सी है? ये वाली कौन सी थी कि प्रपोज्ड इशू प्लस ऑल इश्यूज ऑफ दिस ईयर शुड बी 5 times ऑफ नेट वर्थ ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. 5th कंडीशन थी चेंज ऑफ नेम वाली. राइट, राइट्स इशू मतलब जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं, राइट, that is called rights issue. Bonus issue when there is no consideration, जब हम अपने रिजर्व्स को उठा के कैपिटलाइज कर देते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट के 3 हिस्से थे. प्रिफरेंशियल इशू, ठीक है, दूसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और तीसरा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम. प्रेफरेंशियल इशू में हमने क्या पढ़ा था कि सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होता है. किस किस बात पे चाहिए होता है, क्या ये याद है आपको? किस किस बात पे सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी चाहिए? हमें इस बात पे 2 हिस्सों में हमें चाहिए था. एक अलॉटमेंट से पहले और एक अलॉटमेंट के बाद. किस किस बात में हमें कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट चाहिए कि प्रपोज्ड अलॉटी ने क्या नहीं किया है, विद इन 6 months ऑफ रेलिवेंट डेट शेयर्स नहीं बेचे हैं. विद इन 6 months ऑफ रेलिवेंट डेट नॉट सोल्ड द शेयर्स. देन लॉ कंप्लाइंट है हम. देन we are not, what you can say, not restricted by any statute from fixing any what, from having any preferential allotment. Then what condition was there कि जो shares लॉक इन में हैं उनके फेस पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, एनफेस्ड विथ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्लॉज.
उनके फेस पे लिखा जाएगा. What else was there? What else was there? Okay, that no ineligible allotee, कोई भी अलॉटी इनएलिजिबल नहीं था, इस बात का भी सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, राइट. उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट में उसको क्या 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 सर्टिफिकेट देना है? दिस CS, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग CS. ठीक है, पोस्ट अलॉटमेंट वो किस बात का सर्टिफिकेट देगा? पहली तो दो चीज एकदम पक्की पक्की कि हम लॉ कंप्लाइंट है. ठीक है, ये लॉ में कौन कौन से लॉज थे? Which law? Rule 14 of the listing agreement. No. Rule 14 of the company's prospectus and allotment of security rules 42 and 62 of the Companies Act and regulation and chapter 7 of the SEBI regulations. So chapter 7 is about your preferential allotment of securities. तो हम उसके compliant में हैं. Then no restriction for preferential allotment. हमारे ऊपर preferential allotment की कोई भी restriction नहीं है, right? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे preferential issue cover कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीजें लिख रही हूँ जो हमने preferential allotment के regarding पढ़ी है, right? उसके बाद और क्या conditions हैं? Sorry, और किन points पे वो अपना certificate देगा? The CS will give a certificate on what all points? One more. Okay, जिनको हमने invitation दिया था या offer दिया था, उन्हीं को हमने allotment की है, कोई अलग से नहीं लाए हैं. ठीक है, जिनको हमने invitation दिया था उन्हीं को हमने allotment की है. Then convertible instruments के केस में कन्वर्ट हो चुके थे कब? विदिन 18 months. ठीक है, ये वाला क्लॉज याद है? क्या क्लॉज था ये? कि अगर आपका कन्वर्टेबिलिटी वाला केस है तो आप जो प्रपोज्ड अलॉटी है उनको कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के 18 महीने के अंदर अंदर शेयर्स दे दीजिए, राइट? देन व्हाट एल्स वाज देयर? ओके, प्री प्रेफरेंशियल शेयर्स भी कब से कब तक लॉक इन पे हैं? जब से ये अलॉट हुए तब से लेकर कब से? फ्रॉम रेलिवेंट डेट टू अ पीरियड इमीडिएटली प्रायर टू दी अलॉटमेंट. ओके, एंड देन वन मोर, दैट ऑल शेयर्स वर इन डीमैट फॉर्म. ठीक है, नए वाले तो तुम्हें डीमैट में देने ही है, प्री प्रेफरेंशियल भी पूरी तरह से डीमैट फॉर्म में थे. यू हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग दैट. ओके, एंड पैन ऑफ अलॉटीज आपने लिया है. पैन ऑफ ऑल अलॉटीज आपने लिया है. एंड नो अलॉटी हैज क्रॉस्ड हिज इन्वेस्टमेंट लिमिट. तो ये सारी चीजें जो हमें बाद में देनी पड़ती हैं सर्टिफिकेट, क्या क्या है कि हम लॉ कंप्लाइंट है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जितनों को इन्विटेशन दिया था उन्हीं को अलॉटमेंट की है. कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स 18 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट करके उनको शेयर्स दे दिए. ठीक है, प्री प्रेफरेंशियल शेयर्स लॉक इन में है कब से कब तक? रेलिवेंट डेट से लेकर पीरियड प्रायर टू दी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक. ऑल शेयर्स वर इन डीमैट फॉर्म, हमने सबका पैन लिया है. और नो अलॉटी हैज क्रॉस्ड हिज इन्वेस्टमेंट लिमिट. तो ये दो चीजों के लिए CS को सर्टिफिकेट देना पड़ता है. व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम में हम किसको शेयर्स देते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को. ठीक है, और IPP क्या है? जिसमें प्रमोटर अपना स्टेक किसको दे देता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे देता है. ठीक है, कंपोजिट इशू इज नथिंग बट पब्लिक को ऑफर
प्लस राइट्स इशू, आप पहले अपने लोग को भी दो और पब्लिक को भी दो उसी में साथ साथ में. फास्ट ट्रैक इशू वी हैव टू डिस्कस. देन ऑफर फॉर सेल इज वेयर प्रमोटर sells his stake to the public and this can be done for to secure the minimum shareholding. Okay, अब minimum shareholding, ठीक है, that is a part of SEGRA, so I can just revise here without writing. What is minimum shareholding? अगर आपकी पोस्ट इशू शेयर कैपिटल 1600 करोड़ से कम है तो 25% should be minimum offer to public, right? अगर आपकी पोस्ट इशू शेयर कैपिटल 1600 करोड़ से लेके 4000 करोड़ तक की है तो आपकी मिनिमम ऑफर टू पब्लिक कितनी होनी चाहिए? 400 करोड़. और अगर आपकी पोस्ट इशू शेयर कैपिटल 4000 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक आपका कितना होना चाहिए? 10%, राइट? सो कई बार ये मिनिमम ऑफर टू पब्लिक सिक्योर करने के लिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? प्रमोटर्स अपना स्टेक पब्लिक को बेच देते हैं, right? Then is fast track issue that we are going to discuss right now. Okay, so we have fast, this is very important, फास्ट ट्रैक इशू. फास्ट ट्रैक इशू किनको मिलता है? किनको मिलता है? अच्छी कंपनियों को मिलता है जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलती हैं अभी तक, उनको मिलता है फास्ट ट्रैक इशू. ठीक है, समझ में आ रही बात? फास्ट ट्रैक इशू के बेनिफिट क्या है कि आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की झंझट से आपको हो जाएगी मुक्ति. ठीक है, और आप सीधे प्रोसीड कर सकते हो किस पे? ऑफर डॉक्यूमेंट डालने पे. ठीक है, सो दैट सेव्स टाइम ऑफ योर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फास्ट ट्रैक इशू. इसकी कंडीशंस कितनी थी? हाउ मेनी कंडीशंस? वी हैड 12 कंडीशंस. व्हाट वाज द कोड ऑफ इट? 4233. ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो हमने कैसे याद किया था? हमने इस तरह से याद किया था कि हम अच्छे, हमारे पापा अच्छे, देन हमारा काम काज अच्छा, ठीक है, मतलब हम बहुत ही अच्छे खानदान से हैं, और हमारा बाहर वालों के साथ भी हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे हैं. ठीक है, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड खानदान कि हम अच्छे हैं, हमारे बाप दादा भी सब अच्छे थे, और हमारे सारा वर्किंग, हमारा कामकाज भी अच्छा है, और हमारे सोशल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं. ठीक है, समाज में हमारा बहुत नाम है. ठीक है, तो हम अच्छे के कितने पॉइंट्स? 4. क्या बात कि वी आर लिस्टेड फॉर लास्ट 3 years. ठीक है, देन कंप्लायंस विथ सेबीज इक्विटी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके, देन और क्या बात थी हमारे अंदर? दैट सिक्योरिटीज, नो सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटीज, कभी हमारी सिक्योरिटीज सस्पेंड नहीं हुई हैं ट्रेड होने से. ठीक है, और चौथा, नो शो कॉज नोटिस या प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट अस. ठीक है, कब? कौन सी डेट पे? ऑफर डॉक्यूमेंट की डेट पे हमारे ऊपर ये सब कुछ भी पेंडिंग नहीं है. हमारे पापा अच्छे, इसका क्या था? 2 चीजें,
प्रमोटर्स अपनी राइट्स की एंटाइटलमेंट, ठीक है, राइट इशू की एंटाइटलमेंट रिनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। इफ renounced then only to another promoter, ठीक है। और प्रमोटर्स के सारे शेयर्स किस फॉर्म में हैं? डीमैट फॉर्म में हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर आवर डैट टू बी गुड। देन हमारा कामकाज अच्छा, हमारी एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? कितनी है? पब्लिक ऑफर के केस में मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़, जो कि चेंज हो गया अब 3000 करोड़ हो गई है, और राइट्स इशू के केस में मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, ठीक है। फिर हमारी जो एवरेज ट्रेडिंग टर्नओवर है हमारा, वो कितना है? एवरेज ट्रेडिंग टर्नओवर हमारा कितना है? दैट इज मोर देन इक्वल टू 2% ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड इन लास्ट 6 months, ओके। और एवरेज डिलीवरी बेस्ड कितना है? यही चीज 10% है, ठीक है, ऑफ द सेम थिंग। देन बाहर वालों के साथ हमें कैसे पता चलता है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? हाउ डू वी नो वी आर गुड सोशली ऑल्सो? फर्स्ट, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट कितना है? ऑडिटर की क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट कितना है? लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर जितने भी years we have disclosed in our offer document, okay। नेक्स्ट, हमारा लीड मर्चेंट बैंकर के साथ कोई इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देन व्हाट एल्स वाज देयर? और कौन कौन बाहर वाला था? इन्वेस्टर के ग्रीवियंस कितने निपटा चुके हैं? ठीक है, मोर देन 90% सोल्ड। हाउ मच? मोर देन 95%, ठीक है। और कौन बाहर वाला था? Who else was there? So I just forgot one point. Which was it? Okay. So there must be some point. Okay. कितने हुए ये? 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12। अच्छा 12 हो तो गए। Okay, yeah. It's just 4, 2, 3, 3. I thought I just forgot something. Okay. So it's 4, 2, 3, 3. How much? तो इस तरह से आपको अपनी फास्ट ट्रैक कंडीशंस, फास्ट ट्रैक इशू की कंडीशंस याद रखनी है, and you can see that I remember all 12 of them. Okay. Next we move forward to the procedure of issue of shares, और उसी के बीच में जो आएगा we'll revise each and everything. Okay. Okay.
So next we have that procedure, okay, of issue of shares. What was the first point over there? That you need to be compliance with SEBI regulations. So what are these regulations? The ICR regulations का compliance आपको देखना जरूरी है. Second is what? Approval in जनरल मीटिंग. अप्रूवल आप किस चीज के लोगे? अगर आपको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा. अगर आपको मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करना पड़ा तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, राइट. और अगर आपके आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है कि इशू करने से पहले शेयर्स को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो, तो भी आपको एक मीटिंग रखनी ही पड़ेगी. देन जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? अपॉइंटमेंट्स करोगे फटाफट. किसके? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू, दैट मीन्स द लीड मर्चेंट बैंकर, योर वेडिंग प्लानर, जिसकी सारी हेडेक है, ठीक है, जो पूरे इशू को संभाल रहा है. ओके, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बेचारे के सर पे है. ओके, एंड फोर्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ whom? Your other issue management team member. ओके, अच्छा, अब लीड बैंकर के लीड मर्चेंट बैंकर के बारे में हम एक बार बात करेंगे. लीड मर्चेंट बैंकर को क्या करना पड़ता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द इशू, ठीक है. पूरा जो पब्लिक इशू हम निकाल रहे हैं, उस पूरे के, पब्लिक इशू छोड़ो, कोई भी इशू, पूरे की जिम्मेदारी किसकी? लीड मर्चेंट बैंकर की. देन ही helps in appointment of other members. देखो, ऐसा कहीं भी रेगुलेशन में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप लीड मर्चेंट बैंकर के बारे में लिखो. तो आप लीड मर्चेंट बैंकर के बारे में जो जो जानते हो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, राइट. कि लीड मर्चेंट बैंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द इशू, ही हेल्प्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मेंबर्स. देन व्हाट? He gives a due diligence certificate. कब देता है वो? कब देता है? 4 बार देता है. कब? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के टाइम पे, देन ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे, विच इज द प्रोस्पेक्टस ओनली. ओके, देन ओपनिंग ऑफ द इशू पे देता है, और एक बार कब देता है? क्लोजिंग ऑफ द इशू पे, ठीक है. तो ये 4 बार ये सर्टिफिकेट देके बताता है कि एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ मैनर इज एक्चुअली बीइंग डन इन द सेम मैनर, ठीक है. क्या लीड मर्चेंट बैंकर किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर करके अपनी कोई ऑब्लिगेशन कम करा सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इशू मैनेजमेंट टीम मेंबर, जैसे कि कौन कौन हो गए? आपका registrar to the issue. Who is this person? Who takes care of all the paperwork and the legal formalities, ठीक है. Then is your share transfer agent. भाई कभी कोई ट्रांसफर होगा तो वो उसको देखना पड़ेगा. Then is your collection centers. Okay, that is your bank. Then is your banker to the issue. यानी कि जो मेन बैंक है जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो. ओके, योर बुक रनर इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग, योर सिंडिकेट members, which is the banker to the book building process. Okay,
सो इस तरह से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके एक इशू को मैनेज करने में, राइट। देन वी कम टू ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। इतने लोगों का अपॉइंटमेंट करने के बाद आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट योर प्रोस्पेक्टस, which is your nothing but draft offer document, okay, right। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसके साथ सबमिट होता है? सेबी के पास सबमिट होता है, राइट। एंड इसके बारे में हम और क्या जानते हैं? ओपन फॉर public comment for 21 days, ठीक है। लीड मर्चेंट बैंकर की एक और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस पे क्या करे? एक स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट टू सेबी। क्या लिख के? उसमें कमेंट्स प्लस चेंजेस जो आप लेके आए अकॉर्डिंगली वो आपको वहां पे लिख के देना जरूरी है, ठीक है। देन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप क्या लगाते हो? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपका लीड मर्चेंट बैंकर भी किसको देता है? सेबी को देता है बाद में, ठीक है। और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट के साथ वो देता है, राइट। ओपन फॉर पब्लिक कमेंट। देन एनी चेंज या मॉडिफिकेशन अगर इसमें करनी है तो वो हम कितनी देर में कर देते हैं? विद इन 30 डेज। आपको जो चेंज या मॉडिफिकेशन इसमें करनी है वो आप करा सकते हो, राइट। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज अबाउट योर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। मूविंग फॉरवर्ड, योर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आप उसमें वहां पे क्या दोगे? अपना एमओए प्लस एओए दोगे, ठीक है। देन कम्स मेन योर प्रोस्पेक्टस, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, okay। So what do you understand by prospectus? Is the final offer document, okay। prospectus आपके क्या क्या तरीके के होते हैं? एक आपका नॉर्मल होता है विच इज योर नॉर्मल ऑफर डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका हो सकता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो आपका एट द टाइम ऑफ बुक बिल्डिंग निकलता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे होते हैं, प्राइस नहीं लिखा होता है, राइट। इशू साइज लिखा होता है, ठीक है, इशू साइज लिखा होता है, राइट। फिर क्या होता है? जब बिडिंग हो जाती है, आफ्टर बिडिंग फाइनल प्राइस के साथ आप अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंप्लीट कर लेते हो और फिर उसको आरओसी में फाइल कर देते हो, ठीक है। सो एक तरह से आप कह सकते हो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस ओनली, ओके। वी जस्ट रीड इट इन दिस टाइप, जिसमें कि प्राइस वाइज कुछ नहीं लिखा होता है। जब एक बार बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर हमें प्राइस पता चलता है एंड देन दिस इज फाइल्ड टू आरओसी विद द फाइनल प्राइस। सो दिस ऑफर डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड टू आरओसी एंड योर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है।
दो जगह आपका ये ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है, कहाँ कहाँ, आरओसी में और स्टॉक एक्सचेंज में। कब जाता है, ठीक है, कब जाता है, अगेन विद इन 30 days ऑफ योर ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है, राइट। डज इट इनकॉर्पोरेट ऑल द चेंजेस? यस, इट डज इनकॉर्पोरेट ऑल द चेंजेस। ओके, प्रोस्पेक्टस के साथ आपको क्या क्या बताना पड़ता है, आपकी कंपनी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ बतानी पड़ती है। फिर इसके विद इन 90 days कहाँ जाता है प्रोस्पेक्टस? इशू टू पब्लिक, ठीक है, राइट। अब आपने प्रोस्पेक्टस के साथ दो और टर्म सुने होंगे, कभी आपने सुना होगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कंपनी को बार बार पैसे इशू करने होते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको बार बार पैसे इशू करने पड़ सकते हैं, ऐसे केस में वो इतनी बार प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करेगी, एक बार 1 साल की वैलिडिटी का हमने क्या फाइल कर दिया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। अब हम बार बार उसके साथ क्या देंगे, बस एक इन्फो मेमोरेंडम दे देंगे, इफ एनी चेंज इन द कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी में चेंज है तो हम उसके साथ दे देंगे। और ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, ठीक है, विथ वैलिडिटी, ठीक है, लंबा चलने वाला ये चीज होता है। इसके साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आपने सुना होगा अब्रिज्ड prospectus. So what is abridged prospectus? It is nothing like a, but it contains all the salient features of your, it contains all salient features of prospectus, right? So it's like one pager thing जिसमें हम सारी क्या बता देते हैं, प्रोस्पेक्टस में जो मेन बातें लिखी गई हैं वो हम बता देते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये जब विद इन 90 days इशूड टू पब्लिक होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में जाता है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस उसके साथ लगा होता है, राइट, ओके। और ये इशू ओपन होने के 2 वीक पहले तक सारे हमारे लीड मर्चेंट बैंकर, बैंकर्स टू द इशू, अंडर राइटर्स वगैरह के पास पहुंच जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, सो दिस वाज अबाउट योर प्रोस्पेक्टस। और इसमें कौन कौन अप्रूव कर सकता है? इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय, कौन कौन करेगा? ऑफ कोर्स आपके आरओसी के पास तो ये सबमिट ही हो रहा है, सेबी है, ठीक है, लीगल एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आपने लोन लिया है वो हैं, अंडर राइटर का भी मन कर गया तो वो भी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। तुम कुछ अनशन लिख के पब्लिक को रिलीज कर दो, क्या चीज़, अपना प्रोस्पेक्टस, और कल को पब्लिक तुम्हारे शेयर्स ना सब्सक्राइब करे तो उतना पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा? अंडर राइटर को देना पड़ेगा। तो अंडर राइटर के पास ये अधिकार है कि वो बोल सकता है कि लाओ मैं भी तुम्हारा प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले एक बार रिव्यू करना चाहता हूँ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू प्रोस्पेक्टस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस किस चीज़ के लिए अप्रूव करेंगे? कि उसमें ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है, हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका है लीड मर्चेंट बैंकर और बाकी लोगों के साथ, ओके। व्हाट एल्स, और क्या अप्रूव करेंगे वो लोग? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन डेट, देन जो भी मेरा शेयर एप्लीकेशन या एवरेज प्रोस्पेक्टस उसके साथ जा रहा है वो, फिर टू ऑथराइज फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है, अपना एक अटॉर्नी डिसाइड करेंगे, कौन पर्सन उसको आरओसी में डालेगा वो डिसाइड करेंगे, और स्टैट्यूटरी अनाउंसमेंट किस तरीके से करनी है वो करेंगे,
ठीक है. Then what these guys will do, they will make application to the SEBI for listing of the securities. Next is your printing and distribution of the application form. तो जितने adequate number है उतना print होगा उतना distribute होगा. ठीक है. Abridged prospectus साथ में जाएगा. कब तक? Within 90 days of filing with ROC. This has to be dispatched to the public. Then comes your pricing and next is your promoters contribution. Next is your underwriting. ठीक है. तो ये तीनों बड़ी हैं, ये तीनों बड़े हैं. This we are going to discuss. Okay, so now you have pricing. Pricing में हमें दो चीज़ें पढ़नी है. क्या? प्राइस बैंड के बारे में और किसके बारे में? डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में, राइट? तो हम प्राइस बैंड के बारे में, और यू कैन डू दिस वे. वेट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल प्राइसिंग. हम क्या जानते हैं डिफरेंशियल के प्राइसिंग के बारे में? कि अगर कंपनी चाहे तो डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकती है, राइट? किस किस के लिए? 4 कैटेगरीज थी हमारे पास. एम्प्लॉइज, एंकर इन्वेस्टर, ओके, retail individual investor and your rights issue. ठीक है. आप चाहो तो आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो? लो वैल्यू में दे सकते हो, बट नॉट लेस देन 10% ऑफ पब्लिक ऑफर प्राइस, right? Not less than 10% of the price offered to the public. जिस प्राइस में आप पब्लिक को दे रहे हो उससे आप कितने में नहीं कर सकते हो? 10% से कम पे नहीं कर सकते हो. देन एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? जिसकी एप्लीकेशन कितने से ऊपर हो? 10 करोड़ से ऊपर हो. क्या आप इनके लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हो? नो. ठीक है. इनको आपको सस्ते सस्ते में नहीं देना है. इनके लिए आप डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हो. इनकी एप्लीकेशन जो है इज लेस देन इक्वल टू, इनकी एप्लीकेशन जो है वो 2 लाख से ऊपर की होती है. ठीक है. सॉरी, 2 लाख तक की होती है, राइट? इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख रुपीज़. ठीक है. क्या हम इनके लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. राइट्स इशू में आप क्या अपने लोगों के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो. ठीक है. तो इन चारों के बारे में लिखा गया है कि अगर हम कंपोजिट इशू में अपने लोगों को सस्ते में देना चाहें तो वी कैन डू दैट. ओके. किसमें? कंपोजिट इशू कर लो इसे. अगर हम कंपोजिट इशू में, ठीक है, राइट्स पोर्शन के साथ डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं. दिस इज ऑल वी नो अबाउट डिफरेंशियल प्राइसिंग. देन कम्स प्राइस बैंड. ओके. So you can please come to page number 4.7. You can see price and price band. So we have discussed this thing. It's just that we haven't read this thing. What do we know about price and price band? That during
बुक बिल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, अपना फ्लोर प्राइस जो है, ठीक है, एक दिन पहले बता सकती है। तो इट्स लाइक एफपीओ और आईपीओ के केस में कब, एफपीओ के केस में 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू एंड आईपीओ के केस में 5 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू आप एडवर्टीजमेंट देके बता सकते हो। दूसरा, आपका जो कैप प्राइस होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला प्राइस, प्राइस रेंज में जैसे अगर मैं बोलती हूँ 10 से 20, तो 20 इज योर कैप प्राइस एंड 10 इज योर फ्लोर प्राइस, ठीक है। तो जो तुम्हारा कैप प्राइस होता है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, मतलब कि दैट मीन्स फ्लोर प्राइस प्लस 20% ऑफ फ्लोर प्राइस शुड बी इक्वल्स टू योर कैप प्राइस। ये जो है ये मैथ, ठीक है, आप बस इतने ही रेंज में खिलवाड़ कर सकते हो, राइट। तो ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। और क्या बात लिखा है, द इश्यूअर कैन मेंशन अ प्राइस बैंड इन द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस एंड फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में खाली फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड भी दे दोगे तो चलेगा, ओके। एंड डिटरमाइन द प्राइस एट अ लेटर डेट, हाउएवर प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड विद, जब हम आरओसी को देते हैं तो हमने रेड हेरिंग में ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब हम आरओसी को देते हैं तो उसमें एक डेफिनेट प्राइस लिख देते हैं क्योंकि बिडिंग हो चुकी होती है। द इश्यूअर शुड अनाउंस द फ्लोर प्राइस एटलीस्ट 5 days बिफोर द opening of the bid in case of IPO and 1 day before the opening of the bid in case of FPO. Third, the announcement should contain the relevant financial ratios. Yes, this is an important point कि आपको relevant जो आपकी financial ratios हैं, ठीक है, that has to be computed at both ends. That has to be computed at both ends, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर कम वाले साइड पे बिडिंग होती है तो कंपनी की क्या पोजीशन होगी, ज़्यादा वाले साइड पे बिडिंग होती है तो क्या पोजीशन होगी। इस तरह की रेशियोज कौन कौन सी हो सकती हैं, जितनी आपकी मार्केट प्राइस वगैरह से जुड़ी होती है, मार्केट प्राइस टू असेट रेशियो, पीई रेशियो और प्राइस इक्विटी रेशियो, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट वगैरह, ये सब आपका यहाँ पे हमको कंप्यूट करके किस में देना होता है, वेयर in the prospectus, ठीक है। एंड ऑल्सो अ स्टेटमेंट ड्रॉइंग अटेंशन टू द इन्वेस्टर्स टू द सेक्शन टाइटल्ड बेसिस ऑफ द इशू प्राइस, हम किस हिसाब से वो बेसिस तय कर रहे हैं हमें ये भी बताना पड़ता है। द अनाउंसमेंट एंड द रेलेवेंट फाइनेंशियल रेशियो शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ दोज स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द सिक्योरिटीज आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड एंड ऑल्सो बी pre-filled with the in the application forms available on the website of the stock exchange, ठीक है। तो वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज में आपको इस बात का क्या करना रहता है, पूरा फुल डिस्क्लोजर देना रहता है। देन कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस वाली हमने बात कर ली, राइट। एंड फिफ्थ इज द फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस शुड नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है। फेस वैल्यू से कम तुम्हारी क्या नहीं हो सकती है, फ्लोर प्राइस नहीं हो सकती। अब तीसरी चीज जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे, इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं कि अगर आपके पास, अगर आपका इशू प्राइस, ठीक है, जिस पे आप इशू कर रहे हो, अगर वो आपका 500 से ऊपर है तो आप अपनी फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1 रुपए तक रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका इशू प्राइस 500 से भी नीचे है तो 10 रुपए तो मिनिमम आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। नाउ अराइजेस द क्वेश्चन कि व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, राइट। देयर अराइजेस द क्वेश्चन व्हाट इज द okay, so there arises the question कि what is the face value of any security। फेस वैल्यू का मतलब कि जो उसकी, जो शेयर सर्टिफिकेट पे हम लिख के देंगे कि ये शेयर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है,
ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी की रेप्यूटेशन इतनी अच्छी होती है कि वही चीज मार्केट में कितने में बिक्री होती है, 500 में, 600 में, 1000 रुपए में, जबकि उस चीज की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, सो फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज गिवन इन द शेयर सर्टिफिकेट। ओके, इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी। ओके, सो फेस वैल्यू किस हिसाब से डिटरमाइन हो रही है सिक्योरिटी की, अगर इशू प्राइस is more than 500, then face value can be more than equal to ₹1. Okay, and अगर issue price आपकी कितनी है, less than equal to 500, तो आपकी जो face value होगी that has to be minimum 10. Okay, so we can give a reading to it. First point, page number 4.8, in case of initial public offer by an unlisted company, okay, the issue price is 500 or more, the issuer company shall have a discretion to fix the face value below 10 per share, subject to the condition that the face value is in no case less than ₹1 per share. तो ये 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए. You can write it like this. Okay. Okay, and if the issue price is less than 500 per share, then the face value should be ₹10 per share. ठीक है, तो ये आपकी कितनी होनी चाहिए, this should be ₹10. ओके, और ये किस केस में है, IPO के केस में है, ये याद रखना. ठीक है, and one important thing is the disclosure about the face value of the equity shares, including a statement about the issue price being, जैसे issue price is, अगर 500 यहाँ पे इशू प्राइस है तो इट इज 50 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू. तो ये जो डिस्क्लोजर है ये तुम्हें प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखना पड़ता है. यानी एक तो तुमको यहाँ प्रोस्पेक्टस में क्या देना पड़ता है, बेसिस ऑफ इशू प्राइस, क्या तुम इशू प्राइस रख रहे हो उसका तुम्हें बेसिस देना पड़ता है. एंड द डिस्क्लोजर अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग x टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू shall be made in the advertisement, offer document and in the application forms in identical font size. बहुत बढ़ा के नहीं. ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल बातें तो ऐसे लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं कि हमारा शेयर 50 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू पे बिकता है. ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, नॉर्मल लिखना है कि 50 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू पे मेरा शेयर बिक रहा है बाजार में. ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, you have to write one more thing. So this is your first point, and the second point is कि आपको advertisements में, offer document में और application form में क्या लिखना है, तीनों जगह आपको क्या मेंशन करना है कि issue prices, ठीक है, दिस ना इतना टाइम्स, लाइक हियर इट इज 50 टाइम्स एग्जाम्पल ऑफ फेस वैल्यू. ओके, तो ये आपके प्राइसिंग में आपकी 3 चीजें कवर होती है. एक आपका प्राइस बैंड, दूसरा आपका फेस वैल्यू और तीसरा आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग. ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स दैट इज कवर्ड इन एंटायर प्राइसिंग. ओके, next comes your promoter's contribution. Okay, very important, you can just write it down first of all, then we can move forward to promoter's contribution.
ठीक है. नेक्स्ट इज योर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में क्या क्या है? हाउ मच contribution he has to get, when he has to get. ठीक है. Then to be kept in. Okay. How he has to get, or here only we can write how he has to get. Then not applicable on. Okay. Then is your ineligible securities. Then is your lock-in. Okay. इतनी चीज़ें हमारी किस में थी? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में थी. ओके, राइट. सो हाउ मच ही हैज टू गेट? IPO, FPO. ओके. कितना? मिनिमम 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल. FPO के केस में 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल और 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू. ठीक है. अगर आपकी फर्दर पब्लिक ऑफर है तो आप प्रपोज्ड इशू का 20% भी मैनेज कर सकते हो. ठीक है. कब लाना होता है? 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ बिड या फिर ओपनिंग ऑफ इशू. ठीक है. 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू आपको ला के वहाँ पे रख देना है. ओके. कैसे लेके आएगा? दिस विल बी इन एस्क्रो अकाउंट. ठीक है. जिस पे किसी का बस नहीं होता. प्लस अनदर थिंग क्या थी कि अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 100 करोड़ तो अप टू 100 कब लाना है? 1 डे बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू. ठीक है. और अबव 100 करोड़ अबव 100 करोड़ उसको कब ला के देना है? विथ पब्लिक इशू. ठीक है. proportionately with all calls. proportionately with calls. ठीक है. तो जैसे जैसे पब्लिक से हम पैसा मंगाएंगे वैसे वैसे वो भी लाके हमें दे देगा. ठीक है. किन किन पे एप्लीकेबल नहीं है? जिनके आइडेंटिफिएबल कोई प्रमोटर ही नहीं है. ठीक है. जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से बहुत सही रहा है. ठीक है. डिविडेंड पेमेंट का उनका डिविडेंड पेमेंट और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज रही है. कब से कब तक? दिस इज फॉर 3 years. ठीक है. इन पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. और राइट्स इशू के केस में
प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बातें याद आ रही हैं। देन इन एलिजिबल सिक्योरिटीज, क्या ऐसी कुछ सिक्योरिटीज होते हुए भी हम ऐसा मानेंगे कि ये हम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं गिनेंगे और सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करो? कौन सी वो सिक्योरिटीज हो सकती हैं जो हम नहीं मानेंगे? एक जो तुमने सबसे पहले परचेज्ड इन लेसर प्राइस, ठीक है, देन योर पब्लिक इशू। ठीक है, अगर तुम लेसर प्राइस में परचेज करते हो पब्लिक इशू से कम में, तो हम नहीं मानेंगे। कब? विद इन 1 ईयर समझ जाओ। ठीक है, अगर विद इन 1 ईयर है तो नहीं मानेंगे, बिफोर 1 ईयर है तो मान लेंगे। ठीक है, जहां पे हम नहीं भी मान रहे वहां पे भी हम कह रहे हैं कि डिफरेंस पैसा दे दोगे तो उस चीज को मान लेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर कोई सिक्योरिटी रिवैल्यूएशन, रिजर्व, ठीक है, या फिर किससे, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली है। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटैंजिबल असेट्स वाली है, तो इन तीनों को हम नहीं मानेंगे। राइट, इनएलिजिबल है ये। देन थर्ड, अगर आपने पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया है, कब? विद इन 3 इयर्स नहीं मानेंगे, बिफोर 3 इयर्स मान लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में एक तो आपने कन्वर्ट किया है और आपने क्या हरकत की है कि साथ ही लेसर प्राइस में इसको परचेज किया है। ठीक है, जो पैसा तुमने तब भी दिया है वो पब्लिक से कम प्राइस में था, नहीं मानेंगे। देन प्लेज्ड सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 इनएलिजिबल सिक्योरिटीज, जिसमें ऑलरेडी हमने ये बात कर ली कि अगर डिफरेंस पैसा पे कर दोगे तो मान लेंगे। ठीक है, अगर वो स्कीम ऑफ अमालगमेशन मर्जर यानी कि 397, ठीक है, कौन सा वाला था? 230 से लेके 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पुराने वाले कंपनीज एक्ट 1956 में इट वाज 397 to 407 समथिंग। ठीक है, तो अगर वो 230 से 240 वाले यानी कि अमालगमेशन मर्जर वाली स्कीम में मिली हुई हैं तो मान लेंगे। ठीक है, दो 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाली हैं तो मान लेंगे। ओके, और एक और, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की है प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर की हैं तो भी मान लेंगे। ठीक है, किस किस की नहीं मानेंगे? परचेज इन पब्लिक विद इन 1 ईयर नहीं मानेंगे, बिफोर 1 ईयर ऐसे ही मान लेंगे। लेकिन जहां पे नहीं मान रहे वहां पे भी अगर 3 बातें हुई तो मान लेंगे। क्या? या तो डिफरेंस पे कर दो, मान लेंगे, या फिर दिस इज और, ओके, और ओके, या फिर 240, 230, 240 मतलब स्कीम ऑफ अमालगमेशन मर्जर में अगर ली गई हैं तो मान लेंगे। एंड लास्टली
अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाली हैं तो मान लेंगे, ठीक है। अगर आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व कंसिडरेशन अदर दैन कैश और कैपिटलाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट से वो बनाई हैं तो वो सिक्योरिटीज हम नहीं मानेंगे। और इन सब के साथ प्लस बोनस ऑन द सेम, ठीक है, तो नहीं मानेंगे। देन कंपनी में कन्वर्ट कराया विद इन 3 इयर्स नहीं मानेंगे, बिफोर 3 इयर्स कराया मान लेंगे, और आपने यही सिक्योरिटीज लेसर प्राइस में ली थी। और चौथा, अगर कोई प्लेज्ड सिक्योरिटी है तो हम वो नहीं मानेंगे। लॉक इन कब तक के लिए रहता है? लॉक इन आपका रहता है कितने के लिए? 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स आपका लॉक इन रहता ही रहता है, ठीक है। कैन ट्रांसफर ओनली टू प्रमोटर, ठीक है, कैन ट्रांसफर ओनली टू प्रमोटर। देन आपका प्री इशू शेयर होल्डिंग अगर कुछ भी होता है तो दैट इज लॉक्ड इन फॉर 1 year, that is locked in only for 1 year. Again can transfer but only to pre-issue shareholders, ठीक है। देन ट्रैक रिकॉर्ड वाली जो कंपनियां होती हैं जिनका बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड? 3 इयर्स का, 3 इयर्स में आपने क्या क्या किया है? डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड है आपका, और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग का रिकॉर्ड है। देन नो लॉक इन, ओके। सो दिस इज व्हाट वी रेड इन आवर लॉक इन वाला क्लॉज, दैट देयर इज नो लॉक इन फॉर सच व्हाट, देयर इज नो लॉक इन फॉर सच शेयर्स, okay. Sorry, this is not pre-issue shareholding, this is this is over and above minimum promoters contribution, that will be locked in for 1 year, okay, that cannot be transferred, okay, that cannot be transferred. समझ में आ रहा है? Then if this can be transferred, क्योंकि फिर अगला क्लॉज ऐसे ही लिखा है ना, if this can be transferred then only to promoters, ठीक है। So this is all about your promoters contribution, this is in a glance, so you can just write it down ताकि आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पढ़ने में, ओके। 2-3 clauses were attached to it कि for persons other than promoters it is locked in for 1 year, पर उसमें भी 2 लोगों को हम छोड़ देते हैं, कौन? एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी जिसका हम फुल डिस्क्लोजर क्यों कि उन्होंने ईसॉप में शेयर्स लिए, और दूसरा वेंचर कैपिटल फंड वाले को हम माफ़ कर देते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड वाले का भी शेयर लॉक्ड इन रहता है बट ओनली टिल व्हेन डेट ऑफ परचेज से लेकर कब तक? shall be locked in for a period of 1 year from the date of purchase. इन लोग का कब से कब तक लॉक इन रहता है? 3 years लॉक इन फ्रॉम commencement of operations, commencement of operation या allotment, public allotment, ठीक है, whichever is later, इन लोग का तब से तब तक लॉक्ड इन रहता है, ओके, ठीक है। इसके साथ साथ था सिक्योरिटीज लेंट टू स्टेबलाइजिंग एजेंट, वो लॉक इन नहीं होती है, फॉर द पीरियड इट इज लेंट टू दैट एजेंट, ओके। देन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, देन दीज सिक्योरिटीज आर अलाउड टू बी प्लेज्ड इन, जब तक वो लॉक इन में है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है, बट इट इज डेफिनेटली अलाउड टू बी लॉक्ड इन, ओके। Then we come to underwriting. What was underwriting? I need not write because
अंडरराइटिंग वाज नथिंग सो ग्रेट. अंडरराइटिंग में सिर्फ इतना था कि जो आपके अंडरराइटर, जो आपको अंडरराइटिंग अग्रीमेंट एंटर करना ही पड़ेगा. ओके, एंड what will happen when the public will not subscribe to the minimum shareholding, who will subscribe to it? Underwriter. So we have to enter into an agreement with the underwriter. Underwriter will further enter into an agreement with the syndicate bank members. तो इन लोग क्या होगा, पहले अंडरराइटर को ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, वो नहीं किया तो उसके नीचे वाले जो लोग हैं syndicate members, वो लोग पूरी करेंगे. Right? So there were certain clauses. Okay. Okay. So what were these things कि underwriting you have to enter when the issuer making a public issue. ठीक है, उसको underwriter appoint करना ही करना है, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू है तो बुक रनर्स और सिंडिकेट बैंक मेंबर्स को अपॉइंट करना है. ओके, उसके बाद उसको द इश्यूअर शैल एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट विद द बुक रनर, who is in turn shall enter into an underwriting agreement with the syndicate members. ठीक है, फिर उस हिसाब से, अच्छा दिस इज रिवर्स, सॉरी, अगर सिंडिकेट बैंक मेंबर्स अपनी अंडरराइटर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करते हैं तो उसका सीनियर जो कि अंडरराइटर है, मेन अंडरराइटर, वो फुलफिल करेगा. राइट? और अंडरराइटिंग के केस में शेयर्स लेने के अलावा ये जो अंडरराइटर्स हैं, बुक मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स हैं, ये लोग जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर होंगे तब शेयर्स नहीं लेंगे, सिर्फ जब पब्लिक नहीं लेगी तभी ये लोग लेंगे. राइट? सो दिस इज ऑल वी रेड इन अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग में हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्रोस्पेक्टस में हमें लिखना पड़ेगा कि कौन हमारा अंडरराइटर है, और हमने अंडरराइटर की सफिशिएंट रिसोर्सेज को देखते हुए ही उसको अंडरराइटर अपॉइंट किया हुआ है. राइट? बात समझ में आ गई? इतना ही हम लोगों ने अंडरराइटर में पढ़ा था, अंडरराइटिंग में पढ़ा था. नेक्स्ट, what did we read? Dispatch of issue material and all about the ESBA applications. Then we read about the issue of opening date and the period of subscription. तो issue of opening date and period of subscription we have already revised quite a times. कि अगर सेबी की ऑब्लिगेशन आ गई तो आपको जब से वो कंपार्टमेंट, जब से वो फेल होने का रिजल्ट आया तब से लेके विद इन 12 मंथ्स यू हैव टू इशू योर सब्सक्रिप्शन. तब से लेके 12 मंथ्स के अंदर यू हैव टू ओपन योर सब्सक्रिप्शन. अगर नहीं आई तो 31st डे ऑफ द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के बाद से 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू ओपन योर सब्सक्रिप्शन. द सब्सक्रिप्शन शुड बी ओपन फॉर 3 to 10 days and the subscription should be open for 3 to 10 days. and what next? अगर आप बीच में प्राइस रिवाइज करते हो, प्राइस बैंड रिवाइज करते हो, तो भी आपका 3 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, बट इन एनी केस इट डज नॉट गोज बियॉन्ड 10 days. राइट? इन एनी केस इट डज नॉट गोज बियॉन्ड 10 days. ओके, देन एडवर्टीजमेंट वगैरह छपवाना है. देन वी कम बैक अगेन टू आवर प्रोसीजर. अंडरराइटिंग के बाद आपका था सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन पहले जब प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो वो सर्टिफिकेट हमें किसको देना पड़ता है? आरओसी को और सेबी को देना पड़ता है. देन कोऑर्डिनेशन विद द बैंकर्स टू द इशू, दे कलेक्ट ऑल आवर मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड ओनली आफ्टर द लीड मर्चेंट बैंकर furnishes a due diligence certificate, then only that amount is released to the company for use. Okay, then comes the topic of minimum subscription. minimum subscription कितनी होनी चाहिए? 90%. ठीक है, अगर 90% नहीं होती है तो आप पैसा रिफंड करो, विद इन 15 days रिफंड करो जब से आपको पता क्लोजर ऑफ द इशू से. ठीक है, और अगर आपका अंडर रिटन इशू है तो फिर 60 दिन वेट कर लो कि आपको अंडरराइटर पैसा दे देगा. अगर नहीं देता है तो विद इन 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू. ठीक है, यानी कि क्लोजर ऑफ द इशू यहाँ हुआ, अब तुम्हें पता चल चुका है कि पब्लिक ने तुम्हें पैसा नहीं दिया. 60 दिन वेट करो कि अंडरराइटर पैसा देगा. अगर अंडरराइटर तब भी पैसा नहीं देता है तो इसके 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, सारा पैसा रिफंड करो. यानी कि क्लोजर ऑफ द इशू से कितना? 70 days. ओके, बात समझ में आ गई? सो दैट इज व्हाट वी रेड इन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ओके, नेक्स्ट इज restriction on further issue of the capital and the most important reservation on competitive basis. Okay,
That is what we have to revise. That will be our final thing. Okay. So restriction on further issue of capital, इसका मतलब है कि कब से कब में आप further issue of capital नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप अपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में 1000 करोड़ की बात लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इशू करते समय 1500 करोड़ कर सकते हो. दैट विल बी टर्म्ड एज फर्दर इशू ऑफ कैपिटल एंड सेबी एज पर इट्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट्स दिस काइंड ऑफ अ व्हाटएवर. ठीक है. तो अब रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, अगर आपका फास्ट ट्रैक इशू का केस है तो आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट तो डालते ही नहीं हो, राइट. और अगर आपका नॉर्मल केस है तो आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट डालते हो. तो कब से कब तक में यू आर रिक्वायर्ड नॉट टू थ्रो एनी फर्दर कैपिटल इनटू द मार्केट. ठीक है, नॉट टू रेज एनी फर्दर कैपिटल इनटू द मार्केट. अगर आपका ये रेस्ट्रिक्शन जो है कब से कब तक की है, ऑन फर्दर इशू ऑफ कैपिटल. फास्ट ट्रैक का केस है और नॉर्मल इशू का केस है, राइट. कब से कब तक में, यहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट से लेकर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी तक, या फिर अगर रिफंड दे रहे हो तो रिफंड तक. और यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से लेकर लिस्टिंग रिफंड तक, अनलेस प्रॉपर डिस्क्लोजर हैव बीन मेड. यानी अगर अनलेस व्हाट प्रॉपर disclosure have been made. ठीक है, I'm sorry. यानी अगर आपने अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में या ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है दैट यू आर गोइंग टू रेज, यानी अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ये क्लियर लिखा है कि आप इतने का कैपिटल इशू कर रहे हो, देन तो यू कैन रेज, अदरवाइज यू कांट. So SEBI actually wants proper disclosure of your intentions. Okay, that is nothing but restrictions on further issue of capital. Okay, next we come to what कि आपके basis of allotment किसके साथ मिलके फाइनल होनी चाहिए, आपका लीड मर्चेंट बैंकर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एमडी ऑफ योर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, देन यू नीड कोऑर्डिनेशन विद ऑल योर इंटरमीडियरीज. देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफर टू पब्लिक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, then is your reservation on competitive basis. Then is your reservation on competitive basis. किसके लिए कितना रखना है ये हमें देखना है, राइट. ओके, सो इसमें कौन से दो कैटेगरीज थी हमारे पास, एक था आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, याद है, और दूसरा था अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट. एक था आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस, दूसरा था अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस. किस किस के लिए हम रखते हैं सिक्योरिटी रिजर्वेशन, हम किस किस को देते हैं, एक एम्प्लॉइज, ठीक है, परमानेंट होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए. कितना रखते हैं हम उनके लिए, 5%. ओके, कितना रखते हैं हम उन लोग के लिए, 5%. और ऑफ कोर्स इसमें आप किस किस को नहीं लोगे, प्रमोटर या प्रमोटर का कोई भी
रिलेटिव हुआ तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। दूसरा, शेयर होल्डर्स ऑफ, क्या था इसमें, अगर आपका आईपीओ का केस है, ओके, ओके, अगर आपका आईपीओ का केस है तो लिस्टेड प्रमोटिंग कंपनीज, ओके, और अगर आपका एफपीओ का केस है तो लिस्टेड ग्रुप कंपनीज। इसमें भी प्रमोटर को हटा के, राइट। और तीसरा, आपके आईपीओ के केस में व्हाट इज टू बी डन, आपके जो डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, तुम्हारे डिपॉजिटर्स हैं, देन यू हैव योर who else, bond holders, subscribers to the services, bond holders, इन सब के लिए हम रिजर्वेशन रखेंगे। इनके लिए हम कितना रखेंगे, 10%। बॉन्ड होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए हम कितना रखेंगे, सिर्फ 5%, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन ये सिर्फ किस में होना चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर में होना चाहिए, राइट। इनिशियल पब्लिक ऑफर में। क्या हम इशू मैनेजमेंट टीम के लिए और कोई रिजर्वेशन रख सकते हैं, नहीं, हम नहीं रख सकते, ठीक है। अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ किन के लिए हम रख सकते हैं, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए नहीं रख सकते, राइट। इतनी चीज़ हमने पढ़ी थी रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस में। इसके अलावा अब हमने क्या पढ़ा था कि फर्दर पब्लिक ऑफर में आप किसके लिए रख सकते हो, यू कैन कीप सम रिजर्वेशन फॉर द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। देन वी रेड सर्टेन थिंग्स अबाउट व्हाट, अबाउट द एडजस्टमेंट्स दैट कैन बी मेड। क्या ये लोग नेट ऑफर टू द पब्लिक में जा सकते हैं अगर इनके यहाँ कम पड़ रहा है तो, हाँ, इन लोग जा सकते हैं, ठीक है। इन लोग नेट ऑफर टू पब्लिक में घुस सकते हैं, इन लोग घुस सकते हैं, नहीं, इन लोग घुस सकते हैं, नहीं, ठीक है। इन लोग नेट ऑफर टू पब्लिक में जा सकते हैं लेकिन बाकी कोई नहीं आ सकता। अगर रिजर्व कैटेगरी में एक में कम पड़ रहा है तो वो क्या हो सकता है, अगर एक जगह अंडर सब्सक्रिप्शन है तो दूसरा कोई जना आके उस रिजर्व कैटेगरी से शेयर ले सकता है, ठीक है। और अगर सारी रिजर्व कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो नेट ऑफर टू पब्लिक वाले यहाँ पे आके शेयर्स ले सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एनी अनसब्सक्राइब पोर्शन इन एनी रिजर्व कैटेगरी में बी एडेड टू अनदर रिजर्व कैटेगरी, और अगर दोनों रिजर्व, अगर सारे रिजर्व कैटेगरी में भी कुछ अनसब्सक्राइब रह जाता है तो किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, नेट ऑफर टू पब्लिक में चला जाएगा। सिमिलरली इज द रिवर्स केस, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी तो वो घुस के आके किस में, रिजर्व कैटेगरी वाले लोग उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इनका आपस में एडजस्टमेंट्स होता है, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम कितने का करना है, किसी भी एम्प्लॉय को हमें 2 लाख तक ही करना है मैक्स, बट इफ अंडर सब्सक्रिप्शन है तो अगर भाई नई लोग ले रहे हैं तो ज्यादा दे दो, कितना ज्यादा दोगे, उस केस में मैक्स 5 लाख, ठीक है। सो दिस इज द टोटल थिंग दैट वी रेड। एक चीज इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ी थी, बुक बिल्डिंग, ये और एफपीओ के केस में आप क्या कर सकते हो, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिनको आप RII बोल सकते हो, उनके लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, राइट। सो दिस इज योर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। अगर एक जगह से रिजर्व कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो दूसरी रिजर्व कैटेगरी वाला ले ले, उस रिजर्व कैटेगरी में भी अंडर सब्सक्रिप्शन है तो नेट ऑफर टू पब्लिक में डाल दो, ठीक है। और अगर नेट ऑफर टू पब्लिक में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ऊपर के किसी को भी शेयर्स दे दो,
ठीक है, ये जो लोग अपनी रिजर्व कैटेगरी में शेयर्स ले रहे हैं वो नेट ऑफर टू पब्लिक में घुस के नहीं ले सकते, ये लोग नेट ऑफर टू पब्लिक में घुस के ले सकते हैं। क्या ये लोग नेट ऑफर टू पब्लिक में घुस के कभी भी शेयर ले सकते हैं? ठीक है, कैन गो इन नेट ऑफर टू पब्लिक ओनली इफ देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन इन नेट ऑफर टू पब्लिक। ठीक है, सिर्फ तब जा सकते हैं व्हेन देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन इन नेट ऑफर टू पब्लिक, दैट इज योर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। इसके बाद हमने पढ़ा कि नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी भी जो है उसमें भी आपको किस तरह से शेयर्स का अलॉटमेंट करना है, राइट किस तरह से आप एलोकेशन करोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब नेट ऑफर टू पब्लिक वाले में किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन था, एक तुम ले लो बुक बिल्डिंग, एक तुम ले लो अदर देन बुक बिल्डिंग। ठीक है, अदर देन बुक बिल्डिंग और एक ले लो बिल्डिंग, राइट बुक बिल्डिंग के दो हिस्से, क्या अंडर रेगुलेशन 26(1) अंडर रेगुलेशन 26(2), राइट। अब रेगुलेशन 26(2) वाला सबसे सिंपल था, क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको किस हिसाब से शेयर्स देने हैं, QIB को 75% मोर देन इक्वल टू 75%, आपके रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देना है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कितना देना है, बहुत दे दिया तो 10%। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू 10%। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो देना है वो आपको 10% देना है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मैक्सिमम जो देना है वो कितना देना है, 15%। ठीक है, और रेगुलेशन 1 में यहाँ पे हमारे पास बात थी कि यहाँ पे आप किस तरह से दोगे, QIB को, RII को और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि NII को। वहाँ पे मैक्सिमम आपको 10% देना है, यहाँ पे मिनिमम आपको कितना देना है, मिनिमम आपको देना है 35%। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे इसको मिनिमम देना है 15%, राइट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिनिमम देना है 15% और यहाँ पे इसको मैक्सिमम देना है कितना, लेस देन इक्वल टू 50%। बहुत ज़्यादा दे दिया तो 50%, उसमें भी 5% से 5%, नॉट लेस देन 5%, यानी कि म्यूचुअल फंड्स को तो इतना देना ही देना है। ठीक है, नॉट लेस देन 5% शुड बी गिवन टू म्यूचुअल फंड्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एलोकेट। नेट ऑफर टू पब्लिक का ये क्या है, एलोकेशन है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू, बाकी आप किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, ये जो आपका 45% है ये अदर्स हो सकते हैं। ठीक है, विच कैन ऑल्सो इंक्लूड including anchor investor which is also one kind of your
QIB only. So here you have a comprehensive chart for net offer to public. QIB इस केस में 50% कितना लेगा, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ले लिया तो 50% लेगा, उससे नहीं तो नीचे ही रहेगा. ये मिनिमम, ठीक है, कि बहुत कम से कम 35% तो लेना ही लेना है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैक्स, मिनिमम, मिनिमम, सिमिलरली मिनिमम, मैक्सिमम एंड योर मैक्सिमम. ठीक है, एक जगह मैंने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पूरा नाम लिखा है ताकि आप NII में कंफ्यूज ना हो जाओ. RII तो याद रखोगे कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. ठीक है, QIB में 5% म्यूचुअल फंड को देना ही देना है और 45% में आप अदर्स को दे सकते हो. नेक्स्ट इज योर एन इशू मेड अदर देन थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. अब इसमें एलोकेशन कैसे होती है, इसमें एलोकेशन कैसे होती है हमारे पास कि हमें मिनिमम 50% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देना ही पड़ता है, राइट. इसमें हमारे पास एलोकेशन ऐसे होती है, RRI मिनिमम 50%. ठीक है, बाकी आप किसको रिमेनिंग किसको दोगे, इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स अदर देन RII, यानी 2 लाख से ऊपर के एप्लीकेशंस देते हैं, एंड अदर इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बॉडीज, फंड्स, इंस्टीट्यूशंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अप्लाइड. ओके, सो ये जो 50% के बाद जो भी बचता है, ज़्यादा कोई तो है नहीं लेने के लिए, फिर भी आप किसको दे दोगे, इंडिविजुअल्स अदर देन RII और कोई भी अदर इन्वेस्टर्स. ठीक है, अदर इन्वेस्टर्स मतलब कि जो कि नॉन इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि आपके हो गए कॉरपोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, एक्सेट्रा. इसके बाद भी अगर बचता है, नीदर ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव मे बी एलोकेटेड टू एप्लीकेंट्स इन दी अदर कैटेगरी. ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो आपस में इन लोग डिवाइड कर लेंगे कि किसको कितना लेना है. और अगर मान लो यहाँ पे बच गया, ठीक है, तो वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बच गया तो वो और उसमें ऐड हो जाएगा, राइट. Okay, so that is your net offer to the public. Okay, allocation in the net offer to public, so we already dealt that. Okay, next was your due diligence that we dealt. Last is your allocation of securities. Allocation कब करनी है, closure of the issue से 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर आपको refund देना है तो closure of the issue के 15 दिन के अंदर अंदर आपको refund दे देना है. ठीक है, और अगर नहीं दिया तो 15% पर एनम पे क्या लगने लग जाएगा, इंटरेस्ट लगने लग जाएगा. रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस आपको करने ही करने हैं. ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टस में लिख के देना है कि कितने समय में आप कर दोगे. अगर आपकी कोई और कंपनी है तो उसमें 3 साल से आप किस तरह से इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेस कर रहे हो वो बता दो. पावर्स ऑफ द सेबी है कि वो किसी को भी क्या कर सकती है, एसेस करने से रोक सकती है और बाकी किसी का भी शेयर्स डाइवेस्ट करा सकती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी रेड इंटायरली इन दिस चैप्टर. वी हैव रिवाइज्ड मेजर ऑल द प्रोविजंस दैट वी कुड. ठीक है, इन दिस 1.5 आवर्स. रेस्ट जो भी है जैसे पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट्स, दिस दैट, ठीक है, पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट, प्री इशू एडवर्टीजमेंट्स, proportionate allotment, that do not form any kind of a big or important question. Whatever important questions were there, we have discussed it all right now here with us. Okay, so here we are done with your ICDR regulations. You better focus on this 1.5 hour class so that you can have a comprehensive understanding of your entire chapter. It's a very important chapter, ICDR regulations.
Please focus on this chapter. Please go through your past year question papers. Okay, and go through this chapter once more, go through these notes once more, prepare diagrams like this so that it's helpful for you to prepare at the last moment. So for all the bigger and major provisions, we have made diagrams for the net offer to public, for reservation category, for promoters contribution, okay, for types of issue, for fast track issue, for the procedure to be followed, for the, then last lecture we made a complete timeline of all the timelines that have to be followed. You have to focus on all these small diagrams and graphs and these kinds of notes so that you can have a comprehensive understanding of everything. Okay, we are done with SEBI ICDR regulations. Next lecture we will take up new regulation. Till then, take care. Okay, goodbye, bye bye.